طویل غیر حاضری کے بعد میری واپسی ہوئی ہے اور ایک دھماکہ خیز خبر کے ساتھ کہ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے سیاست میں واپسی کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا کراچی کی سیاست اور ملک کی سیاست سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آج ان سے زوم پر کافی باتیں ہوئیں اور پھر میں نے سوچا کہ اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار بھی کر لی جائیں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دسمبر 2002 میں جنرل پرویز مشرف کی آشیرواد سے گورنر سندھ بننے والے اس وقت کے نوجوان ترین سیاستدان ڈاکٹر عشرت العباد 14 سال گورنرشپ کے عہدے پر رہنے کے بعد نومبر 2016 میں گورنرشپ چھوڑ کر دبئی چلے گئے تھے۔ پچھلے 8 سالوں میں وہ وقتاً فوقتاً خبروں میں تو رہے، لیکن کوئی بہت زیادہ سیاسی سرگرمی ان کی جانب سے نہیں دکھائی گئی تھی۔ لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ملک کی سیاست میں اپنا اہم کردار دوبارہ سے ادا کریں گے۔ عشرت العباد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سیاست میں واپسی کا اصولی فیصلہ کیا ہے، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب انہوں نے ایکٹیو ہونا ہے۔ اچھا، عشرت العباد صاحب اس سے پہلے بھی یہ کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن انہیں ان کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ بظاہر بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ ادھر ان کی سیاست میں واپسی کی خبریں آئیں اور ادھر ہی ان سے متعلق کچھ فائلیں، کچھ کیسز کھول دینے کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں اور عشرت العباد کو واپس بیک فٹ پر جانا پڑ گیا۔ کچھ عرصے قبل ان سے دبئی میں بھی بڑی طویل نشستیں ہوئی تھیں، لیکن آج والی نشست جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج ڈاکٹر عشرت العباد ایک بالکل ہی نئے موڈ میں نظر آئے۔ انہوں نے اپنی جو سابق سیاسی جماعت ہے MQM، اس سے متعلق بہت کھل کر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ MQM میں واپسی ناممکن، وہ MQM میں واپس نہیں شامل ہو رہے اور MQM کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ واپس MQM میں شامل ہوں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ MQM کے دوست مجھ سے خوفزدہ ہیں اور وہ اس بات کو بھی کہہ گئے کہ جناب میں تو ماضی میں کچھ شرارتیں کرتا رہا ہوں، اور یہ شرارت کیا ہوتی تھی؟ وہ یہی ہوتی تھی کہ میں سیاست سے متعلق کوئی بیان دے دیتا تھا، میں کسی سے کوئی ملاقات کر لیتا تھا، لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس دفعہ شرارت نہیں کر رہا، یہ میرا اصولی اور سنجیدہ فیصلہ ہے کہ میں نے سیاست میں واپس آنا ہے۔ اب یہ جو عشرت العباد صاحب ہے، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جناب کیا آپ پھر اگر MQM میں شامل نہیں ہو رہے تو کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں، یا شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل جو نئی سیاسی جماعت بنانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ اس کا حصہ ہوں گے؟ تو عشرت العباد نے دونوں باتوں سے واضح طور پر منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2016 میں جب میں گورنرشپ سے ہٹایا گیا تھا تو دبئی میں ہی آصف علی زرداری صاحب نے مجھے اپنی پارٹی جوائن کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے انہیں شکریہ کے ساتھ یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ میں پھر نہ آپ کے کسی کام کا رہوں گا اور نہ ہی اپنے کسی کام کا رہوں گا۔ اس کا جو جواب انہوں نے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی پارٹی سے متعلق دیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، میں کس سیاسی جماعت میں جاؤں گا ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وہ جو اس طرح سے بات کر رہے تھے اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بعض جگہ پر میں نہیں کہہ رہے تھے، وہ ہم کہہ رہے تھے۔ وہ یہ بار بار کہتے ہوئے پائے گئے اس گفتگو میں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے، پاکستان کے لیے سیاست کرنی ہے، ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے۔ ایک جگہ پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس ان مسائل کے حل کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پورا خاکہ موجود ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ MQM سے متعلق انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور ان میں سے انہوں نے کچھ باتیں جو ہیں ان کی شکوے کے انداز میں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جب MQM کے دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اس وقت جو ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ آپس میں نہ لڑیں، اس طرح سے لڑنے سے جب میں آپ سے متعلق اس سے بات کرتا ہوں کہ کراچی کے لیے کچھ کیجئے تو کراچی کی نمائندہ جماعت کے حوالے سے مجھے یہ جواب ملتا ہے کہ وہ لوگ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے بارہا کہا کہ آپ کم از کم کراچی کے مسائل پر جو ہے وہ ایک ساتھ ہو جائیں، ایک بات کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کراچی کے مسائل کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف برا بھلا بولنا بند کر دیں گے، تو اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی وقت جا کر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر بھی آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میری یہ بات نہیں مانی گئی، لیکن انہیں کرنا وہی پڑا کہ انہیں جو ہے ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑ گیا۔ اب یہ آنا پڑ گیا، یہ لایا گیا یا خود ہوا، یہ جو ہے اب اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی بھی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب نے
जब पीटीआई का 2018 का दौर था उसके हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त भी मैं यही चाहता था कि कराची के लिए कुछ किया जाए, कराची के लिए कुछ होना चाहिए। तो पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान चूँकि एक रिफ्ट थी और दोनों ने जो इंतखाबात हैं उसमें एक ही जगह से हिस्सा में लिया था और एमक्यूएम ये समझती थी कि उसकी सीटें छीन कर जो है वो पीटीआई को दी गई हैं। तो उस वक्त भी मेरी कोशिश यही थी कि कुछ भी है जो हो गया वो हो गया, अब आइंदा इलेक्शन तक जो है वो कराची के लिए मिलकर कुछ करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बताया कि मैंने खुद शाहिद खाकन अब्बासी से भी बात की, एमक्यूएम के दोस्तों से भी बात की और उस वक्त जो है कुछ जो है ठंड जो है वो आ गई थी, जो तपिश थी, जो दोनों जानिब से बयानात दिए जा रहे थे, जो एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही थी, उनमें काफ़ी कमी आई। उन्होंने एक माजी के वाक़े का भी जिक्र किया, कहा कि एक मौके के ऊपर जब 2015 की वो बात कर रहे थे कि जब 2015 में पीटीआई जो है वो कराची से इलेक्शन लड़ रही थी तो एक मौके के ऊपर जो है पीटीआई ने एमक्यूएम के गढ़ 90 के करीब जिना ग्राउंड में जो है वो जलसा करने का ऐलान कर दिया था। ये एक ऐसा मौका था कि इससे मुझे ये डर था कि इस शहर में जो है मज़ीद जो है कोई फसाद ना फैल जाए। तो इस मौके पर उन्होंने बताया कि मैंने पहले पीटीआई के दोस्तों से बात की, उनसे कहा कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसका बाकायदा ऐलान कर चुके हैं, वो खुद कल जो है वो कराची आएंगे और वो इंतजाम का जलसागाह का दौरा भी करेंगे और इंतजाम का जायज़ा भी लेंगे। तो मैंने खुद इमरान खान को फ़ोन किया, मैंने सिर्फ उनसे 2.5 मिनट बात की और इन 2.5 मिनट के बाद इमरान खान साहब का ये कहना था कि जनाब आप वो इस जगह पर अब जलसा नहीं करेंगे और इस बात से कन्विंस हुए कि उन्हें जो है वो किसी सियासी जमात के गढ़ में उसके दफ्तर के सामने जाकर जो है उसकी जो एक सियासी जगह है वहाँ पर जो है वो जलसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐसा ही किया और ये बात जब उन्होंने कहा कि जब मैंने एमक्यूएम को बताई तो एमक्यूएम की जानिब से भी बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया गया और एमक्यूएम की जानिब से ये कहा गया कि अगर इमरान खान आ रहे हैं तो अपनी अहलिया को भी साथ लेकर आए, भाभी को भी साथ लेकर आए, हम उन्हें जो है वो तोहफे भी देना चाहते हैं। तो उनका बताने का मकसद ये था कि वो जब गवर्नर के ओहदे पर थे उस वक्त भी उन्होंने इस शहर के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। एमक्यूएम और पीटीआई के दरमियान उस वक्त भी उन्होंने जो दूरियां थी वो दूर करने की कोशिश की और आज भी उनकी कोशिश यही है कि इस शहर के लिए वो कुछ कर जाएं। एमक्यूएम के दोस्तों से जो उनकी नाराज़गी है उसका उन्होंने बरमला तो नहीं लेकिन वक्तन फ़वक्तन कोई नाम लिए बगैर जो है उन्होंने उसका इजहार किया। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के दोस्त जो मुझसे खौफजदा हैं वो शायद ये समझते हैं कि मैं कोई पार्टी में आकर जो है वो पार्टी के ऊपर कब्जा कर लूँगा, मैं कतन ऐसा नहीं चाहता। उनका ये कहना था कि जो दोस्त हैं एमक्यूएम के जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी का ही वो सिर्फ नाम लेते गए, कहा कि ये दोनों लोग जो हैं वो स्टूडेंट लाइफ से काम कर रहे हैं और उनमें बहुत पोटेंशियल है, वो कराची के मसले हल कर सकते हैं। लेकिन एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है इसकी जिम्मेदार सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है बल्कि एमक्यूएम है। और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कराची की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार एमक्यूएम है। क्यों? क्योंकि वो इस शहर को अपना शहर कहती है। जो आज उनसे मजीद गुफ्तगू हुई उसमें उनका ये भी कहना था कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं हूँ। ये सवाल इसलिए हुआ, ये बात उनसे इसलिए कही गई कि उनसे मुतालिक बहुत सारी बातों में ये बात भी कही जाती है कि इशरतुल इबाद इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और ये बात इसलिए की जाती है कि वो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि 2002 में परवेज़ मुशर्रफ की आशीर्वाद से वो सिंध के कम उम्र तरीन गवर्नर बनाए गए थे। उसके बाद 14 सालों में उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ काम किया और लेकिन वो कभी अपने ओहदे से हटाए नहीं गए, इसलिए उन्हें जो है ये समझा जाता था कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा या उनका बंदा नहीं हूँ, मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़रूर काम किया है कि मैंने कभी इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो अगर सियासत में वापस आ रहे हैं तो इससे इस्टेब्लिशमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कराची आएंगे और कराची आकर जो है जल्द अपनी जो सियासत है उसका अमली तौर पर भी जो है उसका आगाज़ करेंगे और इसके लिए जो है वो जल्द कराची में अपने लोगों के अंदर मौजूद होंगे। एक मौके पर डॉक्टर इशरतुल इबाद बहुत ही शिकवा करते नज़र आए और उनका ये शिकवा जो है वो पूरे इस वक्त सिस्टम से नज़र आया। इशरतुल इबाद का ये कहना था कि इस वक्त मुल्क में गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके लिए उन्होंने जो गंदम का हमारा
स्कैंडल है उसका उन्होंने जो है बड़ा डिटेल में जिक्र भी किया। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि इस गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से आवाम में बहुत ज़्यादा नाउमीदी है, आवाम में बहुत ज़्यादा मायूसी है, और वो ये समझते हैं कि इस नाउमीदी और इस मायूसी की वजह से जो वैक्यूम पैदा हुआ है उससे वो पुर कर सकते हैं। उनका ये समझना है, उनका ये कहना भी था कि भाई जब हमने जो है हमारे पास चूँकि तमाम मसाइल का हल मौजूद है, हम समझते हैं कि हम इन मसलों को हल कर सकते हैं, और माजी में जिस तरह से वो गवर्नर हाउस में मौजूद थे और वहाँ बैठ कर वो जिस तरह से मुख्तलिफ मसाइल को हल कर लिया करते थे, एक और वाक़े का उन्होंने जिक्र भी किया, मैं आगे जाकर उसका जिक्र वो बताऊँगा भी। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो मईशत का मसला है हम इसको भी हल करना चाहते हैं और हम हल कर सकते हैं। और उन्होंने एक बात बताई कि जब निगरां हुकूमत था तो एक बहुत बड़ी सरमायाकारी जो यूरोपियन बिजनेसमैन्स की थी वो दुबई से और डॉक्टर इशरतुल इबाद के ज़रिए पाकिस्तान आना थी, लेकिन उसकी राह में रोड़े अटकाए गए और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा अपने उन यूरोपियन बिजनेसमैन्स के सामने, और वो सरमायाकारी पाकिस्तान नहीं आ सकी। उन्होंने फिर कहा, एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए वो $1 अरब की सरमायाकारी ला सकते हैं। वो ये सरमायाकारी जो है वो पाइपलाइन में है, और जब वो सियासत में दोबारा से अपना किरदार अदा करना शुरू कर देंगे तो वो इस हवाले से भी लाजमी कोशिशें करेंगे। जब वो बार बार सरमायाकारी की बात कर रहे थे तो उनसे ये सवाल भी हुआ कि जो अभी इस वक्त जो है दुबई की जानिब से सरमायाकारी की बातें हो रही हैं क्या इसमें भी उनका कोई किरदार है, तो उन्होंने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, अभी जो वज़ीर आज़म ने अभी ऐलान किया है पाकिस्तान में सरमायाकारी का, इससे उनका कोई किरदार नहीं है। एक बात जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई उनका 12 मई के हवाले से कुछ बातें बताना थी। उनका ये कहना था कि 12 मई के तो हो गया, उसके ऊपर उन्हें अफसोस भी है, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत सी रिपोर्ट जो है वो सामने भी आई, मीडिया का हिस्सा भी बनी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक और मौका था 12 मई के बाद, वो था 27, 28 और 29 मई। इन 3 दिनों के ऊपर जो है अपोजिशन जमातों ने कराची में 3 रोज़ा हड़ताल का प्लान किया था, और उन्हें जब इसकी इत्ला मिली थी तो उन्होंने इस इत्ला के बाद ये फैसला हो गया था कि काजी हुसैन अहमद और मौलाना फजलुर रहमान कराची आएंगे, और कराची आकर जो वो मर्दान हाउस जाएंगे, और मर्दान हाउस जाकर जो है वो इस बात को जो है वो इसका ऐलान करेंगे। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने बताया कि उन्होंने ये बात सुनने के बाद फौरी तौर पर मर्दान हाउस जाने का फ़ैसला किया। वो मर्दान हाउस गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने इस बात को नहीं होने दिया, उन्होंने रहनुमाओं से बात की और उन्होंने कहा कि ये ना करें, इससे जो है कराची में मज़ीद आग लग सकती है। तो जो 3 रोज़ा हड़ताल होना चाह रही थी 12 मई के बाद, मई में ही 2005 में, वो डॉक्टर इशरतुल इबाद का कहना था कि वो नहीं हुई, जिससे शहर में मज़ीद आगो खून फैल सकता था। और उस वक्त जो है उन्हें बहुत ज़्यादा कहा भी गया कि आप बहुत 11th आवर के ऊपर आकर हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त तो काजी हुसैन और मौलाना फजलुर रहमान कराची आने की बात कर चुके हैं, तो इस वक्त इस फैसले को वापस ले जाना नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर इशरतुल इबाद ने कहा कि ये अब आपने देखना है कि ये कैसे होगा, और ANP के रहनुमाओं ने जो है उनकी इस बात को माना और कहा कि आप हमारे घर चल कर आए हैं, हम आपकी बात नहीं टाल सकते। तो डॉक्टर इशरतुल इबाद के मुताबिक मई में एक दफ़ा फिर जो खून रेज़ी की कोशिश थी वो नहीं हुई, 2005 में वो नाकाम हुई। कोशिश तो नहीं कहेंगे, एक मुमकिन तौर पर यह हो सकता था कि अगर 3 रोज़ा हड़ताल हो जाती कराची में तो उस दौरान भी 12 मई की तरह से कराची में कोई खून रेज़ी हो सकती थी। वो जो है डॉक्टर इशरतुल इबाद की कोशिशों से नहीं हो सकी। इशरतुल इबाद ने जहाँ कई बहुत सारी बातें की, वहाँ उन्होंने चंद सवालों के जवाबात नहीं भी दिए। जब उनसे मैंने ये पूछा कि आप जब एक्टिव होने की बात कर रहे हैं तो क्या जब आप एक्टिव होंगे तो आपके साथ वो तमाम लोग भी एक्टिव हो जाएंगे जो MPM में थे माजी में और आजकल जो है सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके खामोशी से बैठे हुए हैं, जिसमें आमिर खान हैं, जिसमें वसीम अख्तर हैं, जिसमें बाबर गौरी हैं। तो इशरतुल इबाद ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इस तरह से उनसे ये भी पूछा कि आप किस गुड गवर्नेंस ना होने की बात कर रहे हैं, आखिर आपको कहाँ बैड गवर्नेंस नज़र आ रही है। तो उन्होंने जहाँ दीगर सवालों के जवाब दिए वहाँ उन्होंने इस सवाल का तफसीली जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस नहीं कहा कि देखें ना गंदुम स्कैंडल वो कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस नहीं है। तो यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं फिर आपके साथ जल्द मुलाकात करूँगा। देखते रहिए FIR।